ପାଇଁ ବାଇବେଲର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଏଟା ଯାହା ଆପଣ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାର କାମ ଆପଣ ନ ଶିଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରୁଥିବା ମିରାକଲ୍ସ ଆପଣ ମାନେ ନ ଶୁଣିଲେ ବି ଚଳିବ। But you have to know, understand, study, meditate about the cross, the death, burial and resurrection. DBR ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଡେଥ୍, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର burial, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର resurrection। DBR ମୃତ୍ୟୁ, ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ରହିଗଲୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଥା। ପୁଣି ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରା କେବଳ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଚିହ୍ନି ଦେବା କଥା ବାଇବେଲର କୋ ପଦ, କୋ ପଦ ପର୍ବ, କୋ ଅଧ୍ୟାୟ, କୋ ବିଷୟ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂହିତା 23 କଣ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଦେବେ, ଯେମିତି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ବୋଲି ଯାହା। ଗୀତ ସଂହିତା 103 ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ, ହେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କର। ନାଇଁ, ଗୀତ ସଂହିତା 1 ବୋଲି କହିଲେ ଯେମିତି ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲି ନାହିଁ, ସେଟା ଗୀତ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରେମର ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଯେମିତି ଆମକୁ ମନେ ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ। ସେମିତି କେତେକ ପଦ, କେତେକ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିବାର ହେଇଥିବାକୁ ପଡିବ କି ଅମକ ଅଧ୍ୟାୟ ଅମକ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅମକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅମକ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁଭୋଜ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ କେମିତି ଥିବ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର, ପରଭାଷା ଓ ଭାଷାରେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। You have to know this, ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ହୋଇଛି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ 16 ପଦ, 100 ବୋଲଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ, 16-17। ଯେଣୁ ଯଦି ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଫଳ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପାପରେ ଅଛ। 18 ବି। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ବାସ୍, ସେ ମୁସଲିମର ଧର୍ମ ନେତା ଜାକିର ନାୟକ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଉଠିନା। ମୁସଲିମ ମାନେ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ମରଲେ ଯେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ କୃଷାର୍ପିତ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ସେମାନେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣ କାହାକୁ ସେ ଆଲ୍ଲାହ କଣ କଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ମୋର ପାଇଁ ଜାନ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି। कुरान यीशु आमर यीशु एक समान नुहंती। नोट दिस पॉइंट, कुरान का ईसा और आम बाइबल रो यीशु दे आर नॉट सेम। पर टैली करके आपन बुझाइबी से माने जहा को ईसा बोली कही छंती ता आमर यीशु नुहंती। से माने कहंती यीशु से दिन क्रूस पाखरु लुचि पळेले, तापर को मगदलेन मरियम को ना का को विवाह हेले, आ पिला छुआ को जन्म करिकी 80 वर्ष बयस रे मरले। तेणुकर यीशु क्रूसार्पित होई नांती और यीशु उठी मृत मानक मध्य उठी नांती बोली साबित करिया पई केते व्यस्त होछन जान छन कि नहीं। आउ स्पेशलिटी कोन कहबी, से मानकर स्पेशलिटी
ଏହା କି ସେମାନେ ଆମର ବାଇବେଲ ରୁ କାଢିକି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କି ଯୀଶୁ ନା କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ଛାଡ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସର କଥା ଏଠି। କାରଣ କରିନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ डिस्कशन ହେଉଥିଲେ कि ନାଇଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ବୋଲି ବାଟ ନାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ यहाँ नरक यहाँ, ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ଏଇ ଜଗତରେ ହିଁ ନରକ ଅଛି, ମରଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ମରଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି, ଯାହା ଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆମେ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆଉ ମରଲା ପରେ କାହାକୁ ଦରକାର, ମରଲା ପରେ କିଏ ଦେଖିଛି, ମରଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବୀ ବୋଲି କହିଲେ କାହାକୁ ଦରକାର, ମରଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ମରଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ମରଲା ପରେ ଯାହା ମିଳିବେ କି ଲାଭ। ଏଇ ଜୀବନ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜଗତର ଜୀବନ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଥର କହିଲି, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଅଟେ, ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ପରିଟା ଅଟେ, ଏକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟାଇପ ର ଅଟେ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ ରିଏଲ, ଏଟା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଅଣ୍ଡାର ଖଳରେ ଥିବା ଛୁଆ ପରି ଅଟେ ଏଇ ଜଗତର ଜୀବନ। ସେଇ 12 ପଦରୁ ଦେଖ 15-12। ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଅଛି, ତେବେ ମୃତମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି କିପରି କହନ୍ତି? ବସ୍ ଯଦି ବସ୍ ବସ୍ ବେଟା, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ସାଧୁକୀ ମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ଏକ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲିବାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ପଶୁମାନେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବି ସେମିତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ପଶୁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ମରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ମରନ୍ତି। ହଁ, ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ବି ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ପ୍ରାଣ ଛାଡିଗଲେ ମରିଯାଏ। ଆଉ ଆତ୍ମା କୁଆଡର ଆତ୍ମା ଆଉ ବୋଲିଲା ପରି ସାଧୁକୀ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଡିସ୍କସନ କଲେ କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରୁଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର 7 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ମରଲେରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ ହେଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ ହେଲା, ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ ହେଲା, 7ଟା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମରଲା ପରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାନରେ ଏଇ 7 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ହେଇଥିବେ କତ ବୋଲଲା ବେଳକୁ ଦେଖ କେମିତି ଅକଳରେ ପକାଇଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ବୁଦ୍ଧି କଣ। ତ 7ଟା ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଣ, ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେବିନି, ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ସବୁ କହିଦେବୁ କି ନାଇଁ କି, ସମୟ ଆସିଲେ କହିବା। ତ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ରହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମୃତ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ସେ ମାଥ୍ୟୁରେ କାଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ 22-33 ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ସେ କଣ କହିଲେ, ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଯଦି କହିଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ଅବ୍ରାହମ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ ନିଜକୁ ମୃତ ଲୋକ ସହିତ ତୁଳନା କରିକି ମୃତ ଲୋକର ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବେ କି? ଅବ୍ରାହମ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ମୃତ ମାନେ ଜୀବିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଏଠି ପୌଲ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଣ ରେ ଭାଇ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତାରି କଥା ଶୁଣିକି ତୁମେ କାହିଁକି କହୁଛ କି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି? ଶୁଣ, ଯଦି ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟର୍ଥ, ଆମର ପ୍ରଚାର ବ୍ୟର୍ଥ, ସବୁ ବେକାର ଗଲାଣି। ଆଉ ବୋଲଲା ପରେ କହିଲେ କି ନାଇଁ 16, 17, 18ରେ ଯୀଶୁ ଯଦି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ସୁସମାଚାର ବେକାର ବୋଲି ଅର୍ଥ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେତେ ଥର ଆପଣ ମାନେ ସୁସମାଚାର କହନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। नो रिजरेक्शन, नो गॉस्पल। बहुत थर कहली, द डेथ ऑफ जीसस इज नॉट द गॉस्पल, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस इज द गॉस्पल, रिजरेक्शन मेक्स द गॉस्पल। पुनरुत्थान ही सुसमाचार अटे। यीशु क्रूसरे मृत्युवर्ण करे कि मृत्यु को जीति नाहंती, पुनरुत्थान प्राप्त है कि मृत्यु को जीति छंती। यीशु मृत्यु क्रूसरे मृत्युवर्ण करे कि पाताल को जीति नाहंती,
पुनरुद्धान ହେଇକି ସାବିତ ସେ ପାତାଳକୁ ଜୟ କଲେ ବୋଲି ସାବିତ ହେଲା। Praise the Lord. एग्जाम लेखिले पास नहीं आज्ञा, रिजल्ट बाहर ले जाना पड़िबो पास। रिजल्ट इज इंपोर्टेंट। एग्जाम लिख देली तेने करे नेक्स्ट क्लास रे जिबे अबे आसु रिजल्ट आगे सेमती क्रूसर मृत्यु ओनली एग्जाम थिला आ पुनरुत्थान हैला फर्स्ट रैंक रो रिजल्ट। प्रेज द लॉर्ड। बी प्राउड ऑफ द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। तांको भोली के भी पुनरुत्थान पाई नाहंती। बहुत थोरो कहले आपण मानकू मृत माने उठिबाटा बोल कहले लाजर भी उठी छंती, जायरस रो कन्या उठी छंती, से विधवार पुओ उठी छंती। आज भी बहुत जगह रे डॉक्टर माने मध्य मरि जाइथिबा लोक को सीपीआर देकी करंट शॉक देकी उठांती। एटा भी एटा पुनरुत्थान नुहे। दिस इज नॉट द पुनरुत्थान। पुनरुत्थान बोले जीसुଙ୍କର ही ओटे, कारण से गौरव उत्थापित हेले, वस्त्र न थाई कि उठिले आ एमिति उठिले जहां मरले नहीं। आउ सही पुनरुत्थान मरण नहीं। लाजर उठिले आउरी मरले, जायरस रो कन्या उठिला आउरी मरला, विधवा स्त्री रो पुओ उठिला आउरी मरला, बहुत लोग उठिले आउरी मरले। प्रकृत रो पुनरुत्थान जहार केबे मरण नहीं। आ तो जिसु उठी बारू कौन कौन हैला हमें देखिबा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक अछि हमें जीवा सीधा कोड़ी जीवा रोमियो एक अध्याय अवश्य हम कही थिली कि तथापि एटा टिके लाइन रे फटाफट कहवा पे इच्छा करूछि मु, कारण एता जीवन सारा सब सब दिन कहले भी चलिबो, बाकीटा आ न कहले भी आप न सुनले भी चली थांता। जिसुंकर पुनरुत्थान रो गुरुत्व महत्व कोन, द रिजरेक्शन, द पर्पस, द इंपोर्टेंस of the resurrection of Jesus Christ. We have to know this. ये पुनरुत्थान हेबा द्वारा से कोन अचीव कले, अचीव कोन कोन साधन कले, साधन ठीक अछि। एको रोमियो एक अध्याय 3 पदरु पढ़ बेटा। ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶଜାତ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମମୟ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଶକ୍ତି ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲେ। बस गोटे मिनिट। तो से इंपोर्टेंट वर्ड हैला 4 पदरे, किंतु धर्ममय आउथर पढ़ ओडिया जेठी कोन लिखि छै, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମମୟ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। गोटे मिनिट ना 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 एटा टिके रॉन्ग हैला ओडिया रे। किन इठी कोन लिखि छै देखो मोर ओडिया बाइबल वर्जन रे, किंतु धर्ममय पवित्र आत्मा संबंधरे मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थान द्वारा ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली शक्ति सह निर्दिष्ट हेले, साबित हेले। नंबर 1 इठी जो धर्ममय पवित्र आत्मा बोली लिखा होचे, एटा पवित्र आत्मा को विषय लिखा होनी। मो पढ़ देखंतु, जीसुंकर आत्मा पवित्र हेथिबारो से मृत मानक मध्यरु जीवित होई ईश्वरଙ୍କ पुत्र बोली शक्ति सह निर्धारित हेले, प्रमाणित हेले। पुणी जीसु जे ईश्वरଙ୍କର पुत्र अटंती बोली साबित करिबा को हेले से मृत मानक मध्यरु उत्थापित हेबा दरकार पड़िला। मृत मानक मध्यरु उत्थापित हेबा पई कोन हेथिबा दरकार पड़िला, ताहांकोरी आत्मा पवित्र बोली प्रमाणित हेबा को पड़िला। पुणी काली सुनथिलु
ଯୀଶୁ ପାତାଳରୁ ଖସିକି ବାହାରି ପଡିବାର ରିଜନ କଣ, କାରଣ କଣ? ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଲଢିକି ବହୁତ ଟାଇମ ହେଲା, 3 ଦିନ ପୁରା ଛଟପଟ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପବିତ୍ର ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖି ପାରିଲା ନାହିଁ। Very simple. If you are holy, Satan cannot touch you. ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହେ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି Satan fears a prayerful person. ଶୈତାନ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀକୁ ଦେଖିକି ଡରେ। ରଙ୍ଗ। ଶୈତାନ ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ଦେଖି ଡରେ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବାକ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି, ଶୈତାନ ତାକୁ ଦେଖି ଡରେ। ରଙ୍ଗ। ଶୈତାନ ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ଦେଖି ଡରେ। ଶୈତାନ ଉପବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ରଙ୍ଗ। ଶୈତାନ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରେ। ବହୁତ ଚାନ୍ଦା ଦାନ ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଡରେ କି? ନାହିଁ, ଶୈତାନ ପବିତ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରେ। ଯଦି ଶୈତାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ହମଲା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ? ଆମର ପବିତ୍ରତା, ଆୱାର ପ୍ୟୁରିଟି। ଆମେ ଆପଣା ପବିତ୍ରତା ହରାଇଲୁ ମାନେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଚौड़ा ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାକୁ ଫରକ ପଡିବନି। ଯେତେ ଲମ୍ବା ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କେତେ ରିଲାକ୍ସ ଥିବ। କର ମୋ ବୋଲଥିବ, ଉପବାସ କର, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି, ତୁ ତ ଆଗରୁ ପଳେଇଲୁ, ତୁ ତ ଡାଉନ ହେଇଗଲି, ଫଲ୍ ହେଇଗଲି, ପଡି ତ ଗଲ, କଣ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେମିତି କରିବାର ନା। Satan attacks the purity. Satan attacks the sanctity. Satan attacks the holiness. कहीं आदम को बेको काटी मारला नहीं ना मु ताको मारिबी, ताको एमिति असुची कर देबी कि तांकर परमेश्वर निजे तांको छाड़ी देबे। एटा हैला शैतान रो स्ट्रेटजी। आपन को मते एमिति हमला करिवो, एमिति आक्रमण करिवो कि आमे आपणार प्यूरिटी, पवित्रता हराइलु माने से शैतान जानि छी परमेश्वर तार पाख को तो जीवे ना, कारण से तो पवित्र परमेश्वर। मु असुची हेकी भी जदि परमेश्वर मो पाख को आछंती बोल शैतान जाय के दाबी करबो आपण पवित्र परा। एमिति असुची लोक पाख काई जाउछ आ जाय कि अभियोग देबा मो विषय। राजीव जन कोन करल जानछ कि ताक बेसी मोर बड्ड पुओ, मोर पुत्र, हमर दास बोल फील होछ कि से कोन गोछ पूरा लिस्ट आउट करबो अभियोग। ब्रदर सिस्टर, holiness इंग्लिश पढ़ी भी सेटा 1:4 रोमन्स, and declared to be the son of God with power according to the spirit of holiness by the resurrection from the dead। हिंदी में देखिबा कोन अछि? हाँ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहराया गया। वाओ, व्हाट अ स्वीट वर्ड। हिंदी में बढ़िया लगे कौन? यीशु की आत्मा पवित्र थी, उस पवित्रता के आत्मा के वजह से वह मरे हुए में से जी उठा और सामर्थ्य के साथ खुद को साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ईश्वर को पुत्र अटंती बोली मध्य साबित करबा पड़ा। जानछन्ती कि नहीं आपण माने? यीशु ईश्वर को पुत्र थिले, ऑलरेडी थिले, जहां हेई थिले ताको साबित कोन पे करबा पड़छि। इटा तो प्रॉब्लम एटा आपण आ मु भी आमे 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 मुखर आमे परमेश्वर को संतान, आमे परमेश्वर को पुत्र। ठीक अछि, आपनकर कन्फेशन इज ओके, बट यू हैव टू प्रूव इट। साबित करो। मुखरे कहीदेले हबो ना आमे भी प्रभुंकर लोक, आमे मानुछु, आमे विश्वास करछु। अरे विश्वास कर्मयुक्त थिबा दरकार। फेथ हैज वर्क्स। नले खाली देखछि
चूल्ही रे बसैले देला पर डेक्ची ढांकी देखी कौन भीतर किसी ने कौन सिझिब खाली डेक्ची खाली डब्बा पर हेबार नहीं अंदर कुछ माल होना चाहिए देयर शुड बी स्टफ इनसाइड स्टफ नथिबा विश्वास काम आमर विश्वास आगे मोर विश्वास आगे तो तुमर विश्वास और कर्म किसी देखा जीवा दरकार रही यीशु को जो साबित करने को पड़ला से ईश्वर को पुत्र अटंती बोली तो आमे भी साबित करने पड़ो पुणी कहीं गोटे पद पढ़ द्वितीय कोरिन्थियो 13 द्वितीय कोरिन्थियो 13:5 ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କର କିମ୍ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯଦି बस ଏହା बस गोटे मिनट तुम्हें विश्वास रे अच्छो कि नहीं निज निज को तुम्हें परीक्षा करके साबित करो तेलुगु वर्ड रे prove yourself that you have faith साबित करो कि तुम्हें प्रकृति रे विश्वासी बोली ना मु कहीं साबित करी मु जानी मोर प्रभु जानी बोल कहले हाँ जानबे से दिन आसब जानबे आमे भी जानी प्रेज द लॉर्ड तुम्हें विश्वास रे अच्छो कि नहीं प्रमाण कर पुणी तुम्हार विश्वास प्रकाश पाओ पुणी से रोमियो कहीं रोमियो पढ़ुल नहीं कि रोमियो 1:4 पढ़लु नहीं कि 1:8 पढ़ रोमियो रे ପ୍ରଥମରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସୁସମ୍ବାଦ ଯେ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ଶୁଣାଯାଉଅଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଶେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି बस तुम मानकर विश्वासर सुसंवाद माने तुम्हारो हे रोमियो रो मंडली रो विश्वासी माने तुम्हारो विश्वासर खबर समुदाय जगत रे सुना जाउछि पुणी वाओ रोमियो मंडली रो विश्वासी माने केते सुंदर गांती एटा नोटेड न हेबा दरकार नहीं रोमियो मंडली रो विश्वासी माने केते मुखस्थ वाक्य मुखस्थ करी कंठस्थ करी मेमोराइज करी बाय हार्ट करंती एटा भी नोटेड न हेबा दरकार नहीं रोमियो मंडली रो विश्वासी माने केते वाक्य रो ज्ञान जानछती एटा भी दरकार नहीं रोमियो मंडली रो विश्वासी मानकर विश्वास केते बड़ो ता समस्त सुनले पुणे यू हैव टू प्रूव योर फेथ सेमिति आमे ईश्वर पुत्र बोली साबित हेबा को पड़ो आपण माने मन अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट 40 दिन 40 राति उपवास करला बेले शैतान आसकी कोन 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 प्रथम परीक्षा कोन थिला यदि सତରେ ईश्वरଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡା यस रोटी करके देखा तुमे जदि सତରେ ईश्वरଙ୍କ पुत्र ताले पत्थर रोटी करके खा शैतान प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजको साबित करबा पई हां अल्टरनेट साइड आइडिया देउछि एमती करके देखाउनो हमको करके देखो मिरेकल करके दिखाओ रोटी करके पत्थर रोटी करके दिखाओ ओहो अच्छा अच्छा तो वाक्य दरकार नहीं कि गोटे काम करो तुम जो सतर ईश्वर को पुत्र तो ए पर्वतरु ए मंदिर शिखर डे पड़ डे पड़े दूत मैंने आसिक रक्षा कर लिखा वाक्य 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 डे पड़ गोटे नॉर्मली परीक्षा कला आ गोटे रे वाक्य देखाई परीक्षा कला और पर्पस थिला कौन तुम ईश्वर को पुत्र बोली एमती साबित करो इजी आइडिया ना जीसु क्रूस रे मृत्युवरण करिवार अछि जीसु पाताल को जीवार अछि सेठिरु बाहरिबार अछि ताहेल से पर्यंत से ईश्वर को पुत्र अटंती बोली साबित हेबो नाही तेणु करी जीसु शैतान जानि से पाताल को आसले मते हराइबे मते मारिबे मोर कंचे मोर चाबी अधिकार सब टाणी नेबे
एतकी सब कहेंगे प्रभु छोटो आइडिया शॉर्टकट आइडिया दे आप भी खुश हम भी खुश आप काम करो ऐसा ऐसा करो ना शॉर्टकट आइडिया दे बहुत क्रिश्चियन माने शॉर्टकट रे स्वर्ग जीवा पे चेष्टा करछंती एंड दे विल नेवर रीच देयर गुड शॉर्टकट आइडिया मन परिवर्तन परित्राण किसी दरकार नहीं बड़ भक्त प्रार्थना करा देले प्रार्थना रे काम हो जिवो बहुत थोर कहली जनकर प्रार्थना द्वारा आपको सुस्थता मिल जाई पारे कि जनकर प्रार्थना द्वारा आपको परित्राण मिलबनी परित्राण पाई आपण माने निजे मन परिवर्तन करने पड़ो निजे पाप स्वीकार करने पड़ो निजे क्षमा मांगा पड़ो निजे बाप्ति जीत होगा पड़ो आ केबे पाप करिबिने बोली निजे निष्पत्ति नेबा पड़ो गुड़ाई अच्छी स्टोरी आपका खुद का कमिटमेंट डिसीजन डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है किसी और के प्रार्थना से आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे खुद डिसीजन लेना पड़ेगा शॉर्टकट आइडिया खोजुछंती आंको एते लक्ष टंका दान दे से प्रार्थना करिबे से बुझिबे आवश्यक प्रभु ते दान दे छंतणी करते में तांको छाड़ो नहीं ऐसे देने से काम नहीं होगा परिवर्तन हेबा को पड़े आ गया सेटा भी निजे निजे कहारी रिकमेंडेशन रे स्वर्ग जाई पारिबे नहीं खुद को साबित करना पड़ेगा जन को रिकमेंडेशन चाकरी मिलले भी चाकरी क्षेत्र रे निज को साबित करबा को पड़िबो कि से चाकरी करबा पई से लोकटा योग्य बोली हां कि नहीं तो प्रथम रीजन कौन पे से पुनरुत्थान प्राप्त हेबा को पड़िला ईश्वरंकर पुत्र से अटंती बोली प्रमाण करबा पई शक्ति तो काई कि ईश्वर पुत्र अच्छी नेक्स्ट पॉइंट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट रे टाइम अछि कि वाओ नेक्स्ट पॉइंट रे देखिबा कोलोसियोस 1 अध्याय 17-18 पद भल रे सुन तो आज रे बाकी एटा हां बेटा पढ़ो अल्फा समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंती ओ ताहांक ठारे समस्त विषयर अस्तित्व अछि आउ से मंडली रूप शरीरर मस्तक स्वरूप से आदि मृत मानक मध्यरु प्रथम जात जेपरि समस्त विषय रे से अग्रगण्य हुअंती वाओ एटा 18 पद रे मेन अछि कोन मृत मानक मध्यरु प्रथम जात गौरव रे पुनरुत्थान प्राप्त हेबारे नंबर 1 पुणी आमे पुनरुत्थान विषय रे सुनिथिलु कि गौरव रे पुनरुत्थान हेबारे जीसु हटंती प्रथम फल आ तापरे के हेबे मंडली जीसुंकर आगमन रे मंडली भी सही गौरव रे उत्थापित हेबो तो प्रथम जात फर्स्ट मैन फर्स्ट पर्सन गौरव रे पुनरुत्थान पाइबारे जीसु अटंती प्रथम व्यक्ति ए पॉइंट नोट करो जेपरी समस्त विषय रे से अग्रगण्य हुअंती अग्रगण्य हुअंती सुंदर वर्ड टा मिस है लाइट ठीक अछि गोटे ट्रांसलेशन रे देखिबी basic English रे and he is the head of the body the church the starting point of all things the first to come again from the dead so that in all things he might have the chief place जीसु मृत मानक मध्यरु उत्थापित हेबार हिंदी पढ़ुछि मरे हुए में से जी उठने वालों में वो पहलोठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे प्रधान जेपरि की समस्त विषय रे अग्रगण्य माने कौन समस्तों को ऊपर से जेपरि प्रभु बोलिबा टाइटल पाई पारिबे चीफ प्रधान सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जीसु ख्रिस्टों को नामो आगरे
लॉर्ड प्रभु बोलिबा नाम पाइबा पाई मृत मानक मध्यरु से उठिबाकू पड़ला पुणी जदि से मृत मानक मध्यरु उठी न थांते तो आज से प्रभु ही न थांते। प्रभु माने कौन? मालिक की नहीं, सबसे बड़ा की नहीं, सबुठु प्रधान की नहीं। तो आज यीशु लॉर्ड केमती है? हाउ कैन वी से जीसस इज लॉर्ड? से प्रभु, से प्रभु जे मृत्युरु उठी छंती से प्रभु प्रति आंठु भांगिब प्रति जीभ कहिब यीशु ख्रीष्ट ही प्रभु। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. How He become Lord? By the resurrection from the dead. है किसी में दम अपने आप को प्रभु बोलने का? लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा लिखी दियोंती। अरे दम है तो दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि वो लोग मरे हुए में से जी उठे हैं। ना उनका कब्र मिलता है, ना उनका अस्तित्व मिलता है, और बाकी सब बाबाओं, धार्मिक बाबाओं का कब्र है अभी तक। प्रभु वो है जो जी उठा है। साहस रे गर्व रे कहिबार वी आर क्राइस्ट फॉलोअर्स। तुच्छारे आमे क्रिश्चियन हेइनु, आमे तुच्छारे गोटे धर्म को धरी बसिनु। आमे मृत मानक मध्यरु उत्थापित हेबारे से प्रथम जात हेले, जेपरिकी समस्तंको उपरे से अग्रगण्य होई पारंती बा प्रभु बोलिबा टाइटल पाई पारंती। नंबर 2। नंबर 3 देखो, नंबर 3 फिलिपी 2 अध्याय, फिलिपियंस 2 अध्याय एक्चुअली 6 रु पढ़िबा दरकार जे लंबा हे जेबा आज पे। ठीक अच्छे आम पढ़ी 6 रु भी पढ़ 6 रु 11 जाए पढ़िबार अछि बेटा। से ईश्वर रूपी हेले ही ईश्वरଙ୍କ सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरी रखिबार विषय मने कले नाही, किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपणाको शून्य कले, पुणी मनुष्य भावरे देखा जाई मृत्यु पर्यंत, हाँ क्रूसीय मृत्यु पर्यंत आज्ञावह होई आपणाको अवनत कले। एही कारणरु ईश्वर ताहांकु अतिशय उन्नत करियछंती, पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्व उत्कृष्ट नाम ताहांकु प्रदान करियछंती, जेपरि स्वर्ग, मर्त्य ओ पाताल रे थिबा प्रत्येक जानू यीशुଙ୍କ नामरे नत हेब, पुणी पिता ईश्वरଙ୍କ गौरव निमंते प्रत्येक जिह्वा यीशु ख्रीष्ट बोली स्वीकार करिबो। प्रेज द लॉर्ड। 9 पदरे एही कारणरु ईश्वर ताहांकु अतिशय उन्नत करियछंती, पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांकु प्रदान करियछंती। तो नंबर 3 हैला यीशु मृत मानक मध्यरु पुनरुत्थान प्राप्त हेबार मेन रीजन हैला सर्वनाम ठारू उन्नत उत्कृष्ट उच्चतम नाम पाइबा पाए। उनके नाम के ऊपर और कोई किसी का नाम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें बड़ बड़ लोक मान नाम कोई था कि नहीं है? मंत्री मान नाम कोई दे कि चली जाए के जनकर है? यीशुंकर नाम कही कि देख है? पुलिस मैंने आसिक धरिले जन को जो धरतु तो किनुले और चालान काटिया पदारे रास्ता रोड उपरे धरिदेले पुलिस माने आमे कही दे तो आसपी सार आम अंकल अटंती आज्ञा
କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆମର ଚାଚା ଗୋଟେ ଦାଦା ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକର ନାଁ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ହଉ ଭାଇ ଯାଉ ଯାଉ ତ ବଡ ଲୋକର ନାମରେ କେତେ ଜଣ ଛାଡି ଦଉଛି ପୋଲିସ ମାନେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଆମର ରାୟଗଡାରେ ଆମର ବଡ ଭାଇ ପେଦା ବହୁତ ବଡ ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ଏବେ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ରୌଡି ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ଆମ ନାନୀ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ବି ସେଠି ଟିଜିଂ କରିବାର ବି ନାହିଁ ରେ ପେଦାର ଭଉଣୀ ରେ ବୋଲି କି ବଡ ଲୋକ ନାମରେ ଚଳି ଯାଉଛି ସେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ କହିଲେ ଭୂତ ମାନେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଏତେ ବड़ा नाम है उनका हालेलुया शैतान कारे नामରେ ଡରୁଛି ଆଜି ଭୂତ ମାନେ କି ରୋଗ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ଗୁଣି ଗାରଡି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମକୁ ଡରନ୍ତି ଆମେ ସେ ନାମକୁ ମାନୁ ତ ବଡ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ବଡ ଏବେ डरने का नहीं है सबसे बड़ा नाम है उनका वही नाम उसने हमको दिया आप निजर नाम हमको ଦେଇଛନ୍ତି ସେ वाओ तो ଯେପରିକି ସର୍ବନାମ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ନାମ ତାଙ୍କର ମିଳେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ନମ୍ବର 5 ଏଫେସୀ ପତ୍ରିକା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 20-21 ଏଫେସୀ 1:20-21 ସେହି ଶକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପୁଣି ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ ପରକାଳରେ ଯେତେ ନାମ ଖ୍ୟାତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ प्रेज द लॉर्ड उपवेशण सबके सिंहासन से ऊपर सिंहासन तांकर सेही पोजीशन पाइबा पाई नंबर 1 ईश्वरଙ୍କର पुत्र साबित हेबा पाई हैं नंबर 2 प्रभु बोलिबा टाइटल पाइबा पाई नंबर 3 सर्वनाम ठारू उच्च नाम पाइबा पाई नंबर 4 समस्तଙ୍କ ଠାରୁ उच्च पोजीशन सिंहासन रे बसिबा पाई से उत्थापित हेले प्रेज द लॉर्ड केतटा हैला पॉइंट 4 की 5 हैला 6 नंबर पढ़ो हमें पढ़ी थिलो ऑलरेडी एवरी 9-12-24 से अपना रक्त घेनी सिंहासन पाकू जीवा पाई उत्थापित न हेले जाई पारि न थांते सेही कब्र रे पड़ी थांते हमर विश्वासी मानक परी एब्री पत्रिका 9 अध्याय 12 पद 24 पद कहे से अपनार स्व रक्त घेनी स्वर्गीय महापवित्र स्थान रे प्रवेश करी परमेश्वरଙ୍କର सामना रे सेटा छिंचिले से रक्त को छिंचिलारु आमे मुक्ति पाइलु तो से आमे देखिलु मगदलेन मरियम यीशु को देखि कि धरिबा पय चेष्टा करथिला प्रभु कोन कहले जहन 20 रे कि मु पिता को पाखो को जाई नहीं जाय कि आसीबे ए भीतर तुमे जाय कि समस्त को प्रचार करो को मैं उठी छी बोली कारण ए रक्त सेठी न पहुंचाइबा जाय किछि काम हेबो नहीं उत्थापित हेबार अछि उत्थापित हेई कि स्वर्ग रे पहुंचीबार अछि रक्त देखाइबार अछि जने भौणी पचारला भली से कोठी रक्त तो पूरा झराई देथिले कोठी से रक्त रखिला हमको जणा ने को दूत माने ताको धरि थिले ना पवित्र आत्मा धरि थिले ना कोन किछि हमको जणा नहीं बट बाइबल सेज ही टुक हिज ओन ब्लड इनटू द मोस्ट होली प्लेस ऑफ द हेवन से अपनार निजर रक्त घेनी स्वर्ग को जीवा निमंते पुनरुद्धान प्राप्त होई कि रक्त सेठी पहुंचीबा जाय हमको मुक्ति नहीं हम तेडी करी न पुनरुद्धान न मुक्ति यीशु जदि उत्थापित हेई नांती तुमर विश्वास वृथा बोल कहले कि नहीं पौलो सही प्रकार 5 नहीं एटा 5 बोधे एटा 5 नेक्स्ट 6 प्रथम पीतर 1 अध्याय 3-4 पद के गुण भी नांत पर लागुछि मोर परिया कटु सब
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ 6 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା କଣ ପୁଣି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଉତ୍ଥାପିତ ହେବେ। ଦିନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି କଣ ପାଇବେ? ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ପାଇବେ, ଅକଳଙ୍କିତ ଶରୀର ପାଇବେ, ଅଜର ଅଧିକାର ପାଇବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଯୀଶୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ହେଲେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ଶରୀର ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଶରୀରର କି ଆଉ ଡ୍ରେସ ଦରକାର ପଡିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି କପଡା ଦରକାର ପଡିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଳାଇ ଥିବା ମଡେଇକି ରଖିଥିବା କପଡା ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲା। ସେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ୱିଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ଉଠିଲେ। ଏମିତି ଶରୀର ପାଇଲେ ଯାହା ଅକ୍ଷୟ, ବୁଢା ହେବନି କେବେ ବି, କଲର ଛାଡିବନି କେବେ ବି, ବାଳ ପାଚିବନି କେବେ ବି, ଦାନ୍ତ ଝଡିବନି କେବେ ବି, ଚଷମା ଲାଗିବନି କେବେ ବି, କିଡନୀ ଫିଡନୀ ଖରାପ ହେବନି କେବେ ବି। କିଡନୀ ନଥିବ ଯେ ସେଥିରେ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଶରୀରର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଲଗା। ଖରା ମାଡ ବାଜିବ ନାହିଁ, ଶୀତ ଲାଗିବ ନାହିଁ, କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଉ ଥାଉ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇ ପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବି ପଳାଇ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ତଳକୁ ଆସି ଯାଇ ପାରିବ। ସେଇ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ଆମକୁ ବି ଦିଆ ହେବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଣ? ଯୀଶୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ସେମିତି ଉଠିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେହି ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ ଟାଇପର ବଡି ତୁମକୁ ଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉ ନାହିଁ। ୱାଓ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗମନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆଗମନ ହେବ ଆମକୁ ସେ ବଡି ଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ସେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଯାଏ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପାତାଳ ପାଖର ସ୍ଥାନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଛାଡିଲେ। ଏଫେସୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8-10 ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ବି 19-20 ବି ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରଥମ ପିତର ଆଗେ ପଢ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ଆଗେ ପଢ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବେଟା ପ୍ରଚାର କଲେ 18-19 ମିଶିକି ପଢ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ସେ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ଜୀବିତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। ବାସ୍, ଆମେ କଣ ଶୁଣିଥିଲୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାତାଳରେ 3 ଦିନ 3 ରାତି ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ସେ ଜୀବିତ ହେଲେ, ସେ ଉଠିଲେ। ଉଠିକି ସେ କଣ କଲେ? ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। କଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି, ଘୋଷଣା କଲେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିକି ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ। ଆଉ ଏଫେସୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8-10 ପଦ ପଢିଲେ ସେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଗଲେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଗଲେ ମାନେ କୋଉଠି ନେଇଗଲେ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଚାରିଟି ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଉ 3ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଅଛି। ୱାର୍ଡ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଓଡିଆରେ କହିବାଟା। permanent places, 4 permanent places and 3 temporary places ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଟୋଟାଲି 7ଟା ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ 2 କୋରିନ୍ଥୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ
ଦୁଇ ପଦରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 12:2 ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ, ସେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତ ହେଲା। ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଏହିପରି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଜାଣେ, ସେ ପାରଦୀସକୁ ନୀତ ହେଲା। ସେ ଶରୀରରେ ଥିଲା କି ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। बस 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 एठी लोक माने कंफ्यूज होंती कारण पाउलो कहउछंती कि मु जणे लोकन को जानिछि से जाइथिला बोली। तो एई कथा अनुसार बहुत लोग जानन भावंती कि सेई लोक पितर होइथिबे। कारण जदि पाउलो जदि जाइथांते तो पाउलो निजे मु जाइथिली बोली कहि देइथांते परा बोली कहंती, किंतु रॉन्ग। एक्चुअली पाउलो निज विषय रे ही कहउथिले आ जेपरि कि लोक माने तांकोठारे न भावंतु कि पाउलो गर्व करूछंती बोली न भावंतु, एथिपई मु जाइछि बोली न कहि कि जणे भाई जाइथिले बोली कहिले। बुझंतु आपण माने निजरो साक्ष्य एटा कि से जाइथिले स्वर्ग को, तृतीय स्वर्ग को, किंतु मु जाइछि बोली कहिले सेटा गोटे गर्वर स्टेटमेंट हे जो, प्राइड रो स्टेटमेंट हे जो। के जाइनांते मु जाइछि कहिला परि हे जिवो बोली से कोन कहले ना ना जणे भाई जाइथिले। तो ये हमको पॉइंट कौन दरकार, तृतीय स्वर्ग तार नाम कौन, पारदीस। पारदीस कोठी थिला, पाताल भितरे थिला। अब्राहम को कोलो बोली नाम थिला जेठी धनी लाजर कथा लेखा अछि। धनी लाजर कथा पाखरे सेटा को स्वर्ग बोली कहि नांती, सेटा को पारदीस बोली मध्य कहि नांती, किंतु सेठी अब्राहम को कोलो बोली लेखा अछि। आउ लेखा जाए कि धनी लोक अब्राहम को लाजर को देखि पारुथिला। पुणी वर्तमान पाताल रथिबा लोक माने स्वर्ग को देखि पारिबे नहीं, किंतु अब्राहम को लाजर को धनी लोक देखि भी पारुथिला और एमिति भाबी मध्य पारुथिला कि टिके बाहर लाजर बाहर के ठीक आसी जाई पारिबो। साइड बाय साइड थिला, टिके ऊपर स्टेप रे पाताल तळे थिला आ अब्राहम को कोलो रो शून्य स्थान टिके ऊपर थिला। सेतबे लिखा जाय अब्राहम से धनी व्यक्ति ऊर्ध्व को दृष्टि करके देखला, अब्राहम सेठी अछन, लाजर सेठी अछंती। सेटा ना 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 स्वर्ग थिला ना किछि थिला। परे प्रभु यीशु ख्रीष्ट सेठी को जाई पुरातन नियमर साधु मानकु परे आपन रक्त छिंची से मान को बंदी आत्मा बोली कहा जाउथिला। से मान को धरी तृतीय स्वर्ग रे रखिले। एबे पारदेश कोठी अछि, स्वर्ग रे अछि। स्वर्गर एक गेस्ट हाउस बोलला परे काली कहउथिली, रेस्ट रूम गेस्ट हाउस बस नले रिसेप्शन रूम रे वेटिंग हॉल। परे आगमन हैला परे, पुनरुत्थान हैला परे, मंडल रो विवाह हैला परे यीशु ख्रीष्ट को सहित तापरे समस्ते आपनार निजर शरीर अर्थात गौरवर शरीर रे स्वर्ग को आस्वादन करि पारिबे। वर्तमान से माने विदाउट यूनिफॉर्म अच्छे वेटिंग हॉल रे जोगी छंती आमर पाई। तो अबे प्रभु को साधु लोक माने मर के कुआडे जिबे, स्वर्ग को ही जिबे। तो ये क्वेश्चन करबा दरकार नहीं, स्वर्ग जिबे ना परदेश जिबे। परदेश स्वर्ग रे ही अछि। स्वर्ग रो रिसेप्शन हॉल वेटिंग हॉल रे अछि। एमिति हमें हमरो झियोर स्कूल को जाओ, हमको रिसेप्शन हॉल रे रखंती। तो सारा सिवा जे लेट हुए तो आमे कौन करू, बसी थाउ कि बेले बेले उठिकी से क्लास से ग्राउंड पूरा बुलू, स्कूल को भी देखी आसु, से ग्राउंड फ्रंट देखी आसु। एमिति साधु माने पारदेश रे थाई कि भी से माने बाहर की स्वर्ग सारा भ्रमण करि पारंती, किंतु किछि एक्टिविटी एबे किछि नै। से माने खाली से मोर आत्मा विश्राम करछि, काम किछि नै। ना किछि मुकुट मिलुछि से मानको, ना किछि सिंहासन बसी पारिबे, ना किछि करि पारिबे, ना किछि छुई पारिबे, किछि नै। विश्राम रे अछि, दे आर टेकिंग रेस्ट, नो वर्क नथिंग। तो एबे प्रश्न केबे करंतु नै कि परदेश कोठी अछि। परदेश आगे तळे थिला, परे ट्रांसफर करले प्रभु यीशु ख्रीष्ट। से माने सेठी अछंती। आज प्रभु को लोक माने समस्त स्वर्ग को जानती। स्वर्ग को जाए आमे आदम को देखू, आमे अब्राहम को देखू, आमे दाऊद को देखू, कथावार्ता हेई थाउ, आमे पितरों को देखू, आमे पाउलों को भी देखू, आमे खुशी हेऊ, आमे विश्राम नेऊ। प्रेज द लॉर्ड। तो पूरा 7टा पॉइंट हैला तो नोट कर ले कि नहीं।
कौन 7टा पॉइंट नंबर 1 से ईश्वर पुत्र साबित हेबा पई से उत्थापित हेबा को पड़िला। नंबर 2 प्रभु बोली उपाधि टाइटल पाइबा पई उत्थापित हेबा को पड़िला। नंबर 3 सर्व नाम ठारू उच्च उत्कृष्टतर नाम तांकर जेपरी हेउ एति पई से उत्थापित हेबा को पड़िला। नंबर 3 नंबर 4 सब सिंहासन ठारू उच्चतम सिंहासन सबु प्रधान सब आधिपत्य कर्तापण जेते दूत माने हाई प्रोफाइल रो हाई स्टेटस रो दूत माने अछंती स्वर्ग रे से मानको ठारू उच्च सिंहासन उच्च पोजीशन तांकर तेनी करी सब दूत माने तांको नाम रे आंठो माडिबा को बाध्य सब भूत माने तांको नाम रे आंठो माडिबा को बाध्य तांकर सिंहासन भी सबुठ बड़ तांको नाम भी सबुठ बड़ से अटंती ईश्वर को पुत्र से अटंती प्रभु। केते हला 5 हला अरे बोली बोली देखो आपरे 4 ही हला। यस 1 2 3 4 हाँ नंबर 5 से अपना रक्त धरी सिंहासन पर्यंत जीवाकू पड़ला सेथि द्वारा आमको यीशुंकर नाम ठारे विश्वास करिबा मात्र के यीशुंकर रक्तर विश्वास करिबा मात्र के मुक्ति मिली जाउछि कारण से रक्त को परमेश्वर सैंक्शन करले कन्फर्म करले राइट बोल कहले अनंत जीवनदायक रक्त एटा बोली कहले यीशु निजे कहले जे मोर शरीर भोजन करिवो जे मोर रक्त पान करिवो से अनंत जीवन प्राप्त हेबो सेतमे प्रभु बोझ नेउछ। 5 नंबर 6 जीवनदायक भरोसा यीशु मृत मानक मध्यरु उत्थापित हेबारु तांको ठारे विश्वासी मानक पई भी ए भरोसा देले कि तुमे मरले भी उठिबो केमिति उठिबो लाजर परिटा नहीं जायरस रो कन्या परिटा नहीं विधवार पुओ परिटा नहीं यीशुंको परि उठिबो गौरव रे उठिबो हां अक्षय अकलंकित अजर अधिकार शरीर मिलिबो एंड फाइनली पुरातन नियम साधु मान को भी से रक्षा कले बंदी मान को से पाताल पाखर रिमांड स्टेटस रो मुक्त करिकी तृतीय स्वर्ग रे पहुंचालारो से माने विश्राम नेउछन बेचारा डरी डरी थिले यीशु आसीबा जाय। प्रेज द लॉर्ड यीशुंकर पुनरुत्थान इज ऑसम इज अमेजिंग इज पावरफुल आम यीशु को विश्वास करी भूल करिनु आज्ञा आम विफल नुह आज्ञा आम परास्त नुह आज्ञा डर नहीं भाई किए जानी तो कहते जे यीशु सतर अच्छी क्या जना किए जाने से आसबे कि क्या जना से सतर में परित्राण पाई क्या जना ये गोटे धर्मर लोक मान कहूँ ना एमती भाव नहीं इट इज रियल से सबू धर्म को लोक मैंने विश्वास करते कि यीशु को विश्वास करने को शैतान दिए ना कारण से जानी एटा सत्य बोली आ जो दिन सत्य जानिबो से दिन मुक्त हेबो बोली से जानी शुणा को देव नहीं विश्वास करने को देव नहीं जाना को देव नहीं बुझा को भी देव नहीं जगत रे जदि कौन से धर्म अति अधिक माड़ खाऊची जदि क्षतिग्रस्त होची ख्रीष्ट धर्म अटे कारण शैतान जानी नास्तिक बाद को के किछ कहना देखो बिग बैंग थियोरी को विश्वास कर लोक को के किछ कहना इवोल्यूशन थियोरी को से डार्विन रो थियोरी को विश्वास कर लोक के किछ कहना किंतु यीशु को विश्वास कर लोक को मारी पकाउछन एथिरे जानो कि यीशु ही सत्य अटंती तेणु कर सत्यर प्रतिरोध करा होछि। चक्षु बंद करियो प्रार्थना करियो। Praise the Lord, hallelujah, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Praise the Lord, महापवित्र प्रेमिक स्वर्गस्थ पिता तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद देउछि प्रभु तुम्हें पुनरुत्थान प्राप्त हेथिबार हमको एही भरोसा एही विश्वास एही परित्राण एही सौभाग्य देइथिबार धन्यवाद देउछि। हां प्रभु तुम्हें जदि उठी न थांतो आमर विश्वास व्यर्थ हो जाई थांता आमर सब कथा केवल एक काल्पनिक कहानी हो जाई थांता किंतु तुम्हें उत्थापित हेलो निजको साबित कलो। हाँ प्रभु आमको भी रक्षा कलो परित्राण देलो शांति देलो सांत्वना देलो मुक्ति देलो लॉर्ड किमती वर्णना करि पारिबु आमे तुमको देखिनु किंतु तुमको आस्वादन करिछु यह सत्य आमे तुमको देखिनु किंतु तुमको अनुभव करि सारिछु प्रभु
आमे अन्य मानको प्रमाणित करिबा दरकार नहीं, बट वी नो दैट यू आर देयर, यू एग्जिस्ट प्रभु, तुमे अच्छो आमे जानिछु प्रभु। के जानतु न जानतु, के बुझंतु न बुझंतु, के विश्वास करंतु कि न करंतु, किंतु आम पय तुमे अच्छो बापा, यू आर देयर फॉर अस, वी बिलीव यू प्रभु। तुम ठारे विश्वास करूछु, तुमरी अस्तित्व को विश्वास करूछु। केवल विश्वास करिबा ही नुहे, से विश्वास रो कर्मर फल रे आमे परित्राण मध्य प्राप्त होइछु। आमे देखिछु कि तुमरी नाम उच्चारण कले शैतान केते डरी जाए, तुमरी रक्त बोली कहले शैतान केते डरी जाए। आमे देखिछु प्रभु, तेनी करी ना तुमरी नाम मिछ होई पारे, ना तुमरी रक्त मिछ होई पारे, ना तुमरी क्रूस मिछ होई पारे, ना तुमरी पुनरुत्थान मिछ होई पारे। यदि तुमरी क्रूस, मरण, पुनरुत्थान सत्य, ताहेले तुमरी द्वितीय आगमन मध्य सत्य हेबाकु जाउछि। आमको प्रस्तुत कर प्रभु, आमको नहीं जाऊ प्रभु, आमे तुम सहित तुम्हारी राज्य रे वास करबा को इच्छा करूछु। आम समस्त को तुम्हारी आगमन पय प्रस्तुत करो, आ एही पुनरुत्थान रो सुसमाचार साहस रे समस्त को आमे जे प्रचार करि परिबु, शक्ति रे प्रचार करि परिबु, एथि पय पवित्र आत्मांकर शक्ति साहस आम समस्त को प्रदान करो। वाक्य सुनथिबा समस्त को आशीर्वाद करो, तुम्हें गौरव पाओ। धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे मागिले पिता, आमेन। एते बेले पिता परमेश्वर प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह, पवित्र आत्मांकर शांति सहायता सहभागिता, प्रभुंकर गौरवमय द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्तंकर सदा सहवर्ती हुंतु, आमेन। यीशुंक नाम रे जय, यीशुंक रक्त रे जय, काल्वरी क्रूस रो जय। हालेलुया, हालेलुया।